Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, I am teaching you. Today date is 9/9/2020. I am teaching you chapter number 15, the coastal plains. The coastal plains and islands. Okay, I am teaching you chapter number 15, the coastal plains and island. So, student, take out your book, open page number 96. Okay, take out your book, student, and you open page number 96. So we have completed question number A, that is tick the correct answer. These are MCQ question. For the one question there are 4 options are given and we have to choose the right answer. So this we have discussed yesterday video, and now after that we have completed question number B also, fill in the blanks. Now today we will start from question number C, that is right, true or false. Question number C. Right, true or false. So let's see what is the first question. The coastal plains have an extreme climate. See, at the time of teaching मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि कोस्टल प्लेन्स में जो क्लाइमेट है दैट इज क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट, नॉट ए एक्सट्रीम क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट है स्टूडेंट? मॉडरेट क्लाइमेट. ओके, एज दे आर so close to the sea, the days are warm and humid and nights generally cool as the sea breeze blow towards the land at night. So what type of a temperature, what type of a climate is in coastal plains? These are the plains which are close to the land, to the sea. Okay, these are the plains which are close to the sea. So the temperature, the climate is moderate. So what is this? This is false. Now see question number 2. Ports are places deep enough for ships to dock. So student, question, let first read the question. Ports are places deep enough, ठीक है, for ships to dock. मतलब ये कह रहा है कि पोर्ट्स वो प्लेसेस होती हैं जो डीप इनफ हो और वेयर यू कैन अनलोड. ओके, और अनलोड भी कर सकते हो और लोड भी कर सकते हो, किसको? शिप को. ठीक है. सो सी स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज, व्हाट इज द आंसर? यस, एब्सोल्युटली राइट आंसर, फॉल्स. ओके बेटा, उसे हम लोग हार्बर्स बोलते हैं. हार्बर वो प्लेस होती है जो इतनी डीप इनफ होती है कि जहां आराम से शिप लैंड के पास क्या हो सके, खड़ा हो सके, जहां उसे लोड भी, उसमें सामान भी डाला जा सके और निकाला जा भी सके. ठीक है. सो और
व्हाट इज द पोर्ट्स, मैंने आप लोगों को बताया था जो हार्बर होती है, ठीक है, उसके अगल बगल का जो एक सिटी लाइक एरिया बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं। जैसे वी आर लिविंग इन वाराणसी, फेमस रिवर इन द वाराणसी इज रिवर गंगा, एंड you see the ghats of the rivers, and around that ghats you will see lot of peoples are living in that area. In the same manner where the ship dock, that place is known as harbor, ठीक है। और उसके अगल बगल का जो शहर बस जाता है, क्योंकि भाई शिप वहां पे आ रहा है, शिप से सामान आ रहा है, शिप पैसेंजर भी कैरी करता है, ठीक है, गुड्स भी कैरी करता है शिप, तो उसके अगल बगल का जो एरिया, जो एक सिटी टाइप का एरिया बन जाता है, उसे हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो डीप इनफ प्लेस होती है जहां पे इस शिप को लोड अनलोड किया जाए, उसे हम लोग हार्बर्स बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हार्बर्स बोलते हैं। दैट इज द रीजन दिस इज अ फॉल्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। Question number 3. There are 70 inhabited islands in Andaman. Okay, so student, see what is given in the question. There are 70 inhabited islands in Andaman. Inhabited मतलब इसका मीनिंग होता है बेटा कि हाउ मेनी आइलैंड्स वेयर द पीपल्स आर लिविंग, ठीक है, वो कितने आइलैंड्स हैं जहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, कौन रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं। देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट स्टूडेंट, नंबर ऑफ आइलैंड्स पूरे कितने हैं तुम्हारे अंडमान में, दैट इज मैंने आपको पढ़ाया था 300 है। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर, आइलैंड्स आर 300 आइलैंड्स आर देयर, and out of 300 islands only how many islands are inhabited, that is 38. Inhabited means where the people are living. 300 में सिर्फ 38 islands ऐसे हैं जहां पे लोग रहते हैं, ठीक है, जहां लोगों की पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, बाकियों पे नहीं रहते। सो यहां दिया है देयर आर 70 inhabited island in Andaman, so definitely this is what, false or true? Yes, this is false. This is false statement. After that, question number 4. The coastal plains are known as the coastal plains are known as the rice bowl of India. देखो, is it clear? The coastal plains are known as the rice bowl of India. So yes, very good answer. Answer is true. Answer is true. देखो बेटा, when we are talking about the coastal plains,
ये आपके वेस्ट में भी है और ईस्ट में भी है। तो वेस्ट वाले को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्ट वालों को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, सो ये जो है कि कोस्टल प्लेन्स आर नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। राइस बाउल ऑफ इंडिया, जस्ट थिंक अबाउट इट, किस पार्ट के बारे में बात करी जा रही है, वेस्ट के पार्ट के कि ईस्ट के? ओके, वेरी गुड आंसर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्ट कोस्टल प्लेन। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा ईस्ट कोस्टल प्लेन्स जो है ज्यादा वाइडर हैं वेस्ट से। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन उसका ये है कि मेनी रिवर्स आर फॉर्मिंग द डेल्टास। जैसे महानदी है, ठीक है, वहां पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, दीज 4 रिवर्स आर फॉर्मिंग द डेल्टास। इसकी वजह से भी ये क्या है, थोड़े ज्यादा वाइडर हैं। और डेल्टा ऑलरेडी आप लोग को बताया, डेल्टास जहां रिवर्स फॉर्म करती हैं दैट एरिया बिकम वेरी फर्टाइल एंड दैट इज द रीजन it is known as also known as the rice bowl of India. So this is the right answer. So this is the right answer. One more question is given in the book, fifth question. Piece of land surrounded by water on all 4 sides is called it an island. So student, fifth question is piece of land surrounded by water, मतलब पानी से घिरा हुआ, सराउंडेड, उसके चारों तरफ क्या है, वाटर है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। यस, इट इज ट्रू। देखो, 2 चीजें तो आप लोग को बताई हैं इंडिया में। एक इंडिया का क्या है, पेंसुलर पार्ट है, वेयर द लैंड इज, पेंसुलर पार्ट क्या था, वेयर द लैंड इज सराउंडेड बाय 3 साइड विद द वाटर बॉडीज। वेस्ट अरेबियन सी, ईस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ इंडियन ओशन। दैट इज इट इज सराउंडेड by 3 sides with the water bodies. But when a piece of land surrounded by water on all 4 sides, चारों तरफ पानी है, पूरा लैंड के चारों तरफ वाटर है। इज इट क्लियर? सो दैट पार्ट इज नोन एज आइलैंड, जो हमने इंडिया में पढ़ा। ठीक है, अरेबियन सी में आइलैंड बन रहा है और बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन प्लीज इसे जरूर कहीं रफ में नोट कर लेना। 1 वर्ड क्वेश्चन में जरूर एग्जाम में टीचर्स ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, ये आता ही ऐसा है, विच आइलैंड इज इन अरेबियन सी। सो प्लीज लर्न इट और नोट डाउन इन योर रफ कॉपी, दैट इज आइलैंड इन द अरेबियन सी, दैट इज Lakshadweep. And Andaman Nicobar, they are situated in the where? Bay of Bengal. Andaman and Nicobar Island, they are situated in the Bay of Bengal. ठीक है, इसे जरूर बेटा रिमेंबर रखना, नोट कर लो। कहीं नहीं नोट कर सकते हो, बहुत आलस आ रहा है, तो प्लीज पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन द पेपर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। एनी टीचर मेक द पेपर, बट सम क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इफ यू नोट डाउन इन योर रफ कॉपी देन वेरी गुड, एंड अगर नहीं रफ में नोट करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ ए पेंसिल you can underline it on page, it is given on page number 94.
4 आप वहां पे इसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज व्हाट, write true or false. This question we have completed. Now student, so piece of land surrounding by four sides is called an island. So this is true. This answer is true. Now student, uh, open page number 96 and now student take out your classwork copy, because next question number D is a short answer question. Now we will complete question answers of the chapters. So student, please take out your classwork copy. Please take out your classwork copy. Write date, today date 9/9/2020. Then you write chapter number 15, name of the chapter, the coastal plains, okay, and on the top you write classwork also, जिससे ये दिमाग में होना चाहिए कि 9/9/20 को ये चैप्टर पढ़ाया है। और उसके बाद यू नोट डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर डी भी लिखोगे। क्वेश्चन नंबर डी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी फाइंड मेनी लाइट हाउसेज इन द वेस्टर्न घाट्स। चलो, अगर तुम लोग ने बहुत अच्छे से वीडियो देखी होगी तो ये आंसर तुम्हारे दिमाग में रन करना स्टार्ट कर दिया होगा। किस पार्ट में? क्योंकि वेस्टर्न जब पढ़ाया था तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। तो इन 3 कोस्ट में कौन सी कोस्ट ऐसी है जो बहुत ही रॉकी है, जहां बहुत सी चट्टाने हैं, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखी होगी वीडियो तो आपके दिमाग में ये आंसर रन करने लगा होगा। इज इट क्लियर व्हाई देयर आर लाइट हाउसेज इन द वेस्टर्न घाट्स? So student, note down question number 1. The short answer question. Question number 1. Why do we find many okay? Why? Question is student, why do we find many lighthouses इन द वेस्टर्न घाट्स? देखो वेस्टर्न घाट्स में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अब तुम लोग को बिल्कुल नॉलेज होगी इस चीज की कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किसके बिटवीन है, किसके बीच में। इट इज बिटवीन अरेबियन, वेस्ट में कौन है? अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है ये। इज इट क्लियर? इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ क्वेश्चन में लाइट हाउसेज इन द वेस्टर्न घाट क्यों पूछ लिया है, क्योंकि जो प्लेन है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के क्या है, बीच में है। Is it clear? So now note down the answer. We find many lighthouses
in the Western Ghats because we find many lighthouses in the Western Ghats because the coastal line here is narrow. Is it clear? Here is narrow and uneven. Narrow and uneven lighthouses along the coast warn ships about the rocks Firstly, I read the whole answer, then I give you the explanation. We find many lighthouses, ठीक है, in the Western Ghats because the coastal line here is narrow and uneven. Lighthouses along the coast warn ships about the rocks that lie just beneath the surface of sea. देखो मैंने आप लोगों को बताया था लाइट हाउसेज वेस्टर्न घाट्स में बहुत जाता है बिकॉज द कोस्टल लाइन जो है यहाँ पे क्या नैरो है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेस में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने आप बेटा आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से ये बताया कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में सिर्फ गुजरात वाला पार्ट ही एक ऐसा पार्ट है जो बहुत वाइडर है, ठीक है. उसके बाद के हिस्से क्या होते गए हैं, बहुत नैरो होते गए हैं. गुजरात वाला पार्ट सबसे ज्यादा वाइडर है कोस्टल प्लेन्स में. सो देखो द कोस्टल प्लेन कोस्टल लाइन हियर इज नैरो एंड अनइवन. एक तो पतली भी है और जगह जगह से ब्रेक भी है, ठीक है, लिखा है ना नैरो एंड अनइवन. कई जगह पे ब्रेक्स भी है, जमीन क्या है नहीं है, ठीक है. सो लाइट हाउसेज अलॉन्ग द कोस्ट वार्न, ये किसको वार्न करती हैं, दिस वार्न द शिप डैट इन दिस देयर आर रॉक्स, क्या बहुत सी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं. और लिखा है विनिथ द सरफेस ऑफ सी, ये चट्टाने क्या है जो सी के वाटर में डूबी हुई हैं, जिसके कारण क्या हम दूर से इन्हें देख नहीं पाते हैं, विजुअल नहीं होती हैं क्योंकि पानी के नीचे डूबी है, चट्टाने हैं पानी के नीचे. अगर शिप आ रहा है तो उसे तो दूर से वो वाटर ही दिखेगा, और बाई चांस वो उस एरिया में आ जाता है उस रूट में, तो शिप एकदम वाटर के ऊपर थोड़ी ना चलता है, उसका आधा पोर्शन तो डीपली पानी में होता है ना. अब ये जो रॉक्स हैं, बहुत ही रॉक्स हैं, ये क्या है डूबे हुए हैं पानी में, ठीक है. तो शिप अगर लाइट हाउसेस नहीं होंगे तो शिप को पता ही नहीं चलेगा कि रूट इतना डेंजरस है. इफ बाई चांस शिप कम इन दैट वे देन व्हाट्स हैपन, ये जो चट्टाने हैं इससे चट्टानों से शिप क्या है, जहाज क्या है, टकरा जाएगा, और इतनी जोर से टकराएगा हो सकता है उसके कई टुकड़े हो जाए, डूब जाए. आपने टाइटेनिक पिक्चर के बारे में सुना था ना, ठीक है, उसमें यही हुआ था, शिप क्या है टकरा जाता है, ठीक है, और ब्रेक हो जाता है, फिर वो क्या है सी में डूब जाता है. तो
दैट इज द रीजन देयर आर लाइट हाउसेस अलोंग द कोस्ट. ये वार्न करते हैं शिप को कि दिस रूट इज नॉट सेफ फॉर द शिप. इज इट क्लियर? बिकॉज देयर आर मेनी रॉक्स विनिथ द सरफेस ऑफ सी. इसे समझ लो बेटा, बहुतों बच्चों को समझने नहीं आता है. विनिथ द सरफेस ऑफ सी मतलब पानी के नीचे चट्टाने, जो रॉक है पानी के नीचे जो चट्टाने हैं ना बेटा, वो डूबी हुई हैं. अब चट्टाने जब पानी के नीचे डूब जाएंगी तो दूर से तो दिखेंगी नहीं ना. दूर से तो लगेगा कि बिल्कुल प्लेन वाटर ही है, जैसे और वाटर है वैसे ही वाटर है. तो दैट इज द रीजन बीनीथ द सरफेस ऑफ सी मीन्स रॉक्स जो है सबमर्ज हैं, डूबे हैं किसमें, सी वाटर से. ठीक है, तो इसलिए वो पता नहीं चल रहे हैं. ठीक, तो दैट इज द रीजन इस एरिया में क्या है, लाइट हाउसेस हैं. और यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये बहुत नैरो भी हैं. आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए आंसर नंबर 1. फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी आप डाउट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. ठीक है, और ये किस कोस्ट में आता है, मैंने आप लोग से स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो बहुत से बच्चों को आंसर स्ट्राइक कर गया होगा. देखो, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो मैंने आपको बताया था बेटा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट. तो ये जो 3 कोस्ट हैं इनमें से आ सकता है एग्जाम में 1 वर्ड. ये जो रॉक्स हैं ये सब किस कोस्ट में है, दैट इज द कोंकण कोस्ट में है. ठीक है, गुजरात कोस्ट में नहीं है, मालाबार कोस्ट में नहीं है. मालाबार कोस्ट में लेगून्स हैं, झीलें हैं खारे पानी की, उसके लिए वो फेमस है, वो मालाबार कोस्ट में है. ठीक है, और ये कोंकण कोस्ट में क्या है ये आपको मिलेगा. ठीक है, जो रॉक्स हैं. और कौन कौन को उसमें तुम लोग को बताया था सबसे ज्यादा ये किसमें रिच है, पेट्रोलियम, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है. ठीक है, पेट्रोलियम रिच एरिया है, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम वहां से निकाला जाता है और नेचुरल गैस. इज इट क्लियर? सो नोट डाउन दिस एंड स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 2. Which island are known for their coral deposit? ठीक है, सो सी स्टूडेंट, ये आप लोग को जब लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ाया था तब मैंने बोला था दीज आइलैंड विच आर जनरली फ्लैट आर वेल नोन फॉर द कोरल डिपॉजिट्स. ठीक है, सो क्वेश्चन है विच आइलैंड्स आर फेमस फॉर देयर कोरल डिपॉजिट. तो आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप आइलैंड.
Lakshadweep Islands. So what is the answer, student? Lakshadweep Islands are generally flat and are well known for their coral deposits. Okay, thank you, student.